Atoms and molecules. Atoms and molecules. So atoms and molecule, अगर हम सबसे पहले बात करें कि what is a atom और what is a molecule, so do you know the difference between atom and molecule? So atoms are bigger than molecules. Atom are bigger than molecule. Yes. Okay. No, sir. Molecules are bigger than atoms. Molecules are bigger than, पक्का? Sir, थोड़ी confusion है. अच्छा, कौन पहले आता है? A पहले आता है कि M पहले आता है? A. चलो अच्छा, इन दोनों में कौन बड़ा है? किसमें ज्यादा लेटर्स हैं? किसमें ज्यादा लेटर्स हैं? Molecule. बस वही बड़ा है, जिसमें ज्यादा लेटर्स वही बड़ा, ठीक है? So atom is a single unit. Single unit means like अगर हमने कार्बन की बात की तो एक सिंगल कार्बन इज एन एटम. Like we talk about oxygen. So oxygen is an atom. Single nitrogen is a nitrogen atom. Okay? Yes. Single hydrogen is a hydrogen atom. जब ये एटम एक दूसरे से मिलते हैं, when they combine with each other, they form molecule. So molecule की definition क्या होती है? Molecules are those entities which are formed by the combination of atoms. Okay? So molecules are formed by the combination of atom. Yes. Okay? Like अगर हम सबसे combination of atom. Combination of atom. तो अब अगर हम एक एग्जांपल, बहुत कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, वाटर. वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. H2O. Okay. So here we can say कि this is a single water molecule. Okay. This is a single water molecule. So how many atoms it contains? It contains 3 atoms, in which 2 hydrogen atoms and 1 oxygen. 1 oxygen atom. Okay. और कोई मॉलिक्यूल है जिसका केमिकल फॉर्मूला आपको पता है? डू यू नो एनी मॉलिक्यूल? सो ऑक्सीजन का O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का CO2. सो ऑक्सीजन का अगर हम मॉलिक्यूल देखें तो O2. सो 2 ऑक्सीजन एटम bind together and form a molecule of oxygen. So this is oxygen. But अगर हम precisely इसको common language में we call it oxygen gas. We called it oxygen gas. But अगर हमें chemically correct होना है तो हम इसका क्या नाम देंगे? We call it dioxygen. Because single oxygen is a oxygen. This is an oxygen atom. So ये सही कब होगा? When we say it oxygen molecule. What we say it? Oxygen molecule. If we say it oxygen molecule, then it is correct. Or we say it dioxygen. So अगर हम molecule word नहीं use कर रहे हैं, then we have to use the word dioxygen because 2 oxygen combine together and form this O2. Okay. So this is the most important gas for our life. ठीक है? Yes. और ये कहाँ पर होती है सबसे ज्यादा? एयर में. एयर में कितना % होता है O2 का? Do you have any idea? Yes, sir. So O2, nitrogen is 78 point something, and O2 is 28 point. So बहुत सिंपल है. नाइट्रोजन आपने एकदम सही बोला, 78%. ओके, 78 पॉइंट समथिंग. ठीक है. And O2 is, I guess, अब कितना लेफ्ट हुआ? 21 पॉइंट समथिंग %. Yes. So 21% जो होती है वो ऑक्सीजन होती है. So these are the 2 major gases in air, nitrogen and oxygen. So nitrogen is approx 78% and it is approx 1%. And जो other remaining gases होती हैं, जिसमें कि आपका water vapors आ जाता है और जितनी भी pollutant gases होती हैं like CO2 हो गई या आपका क्या कहते हैं और भी जो gases हो गई जो कि किसी exhaust से निकलती हैं, sulfur dioxide gas हो गई या मीथेन गैस हो गई, जितनी भी gases हैं वो सारी की सारी कितना कंप्राइज करती है? 1%. Yes. या समथिंग इनर्ट गैसेस हो गई कुछ. Yes. अच्छा. तो दीज आर, तो ऑक्सीजन कितना होता है? 21% होता है. अच्छा, ऐसे ही नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को हम लोग मॉलिक्यूल फॉर्म में क्या लिखते हैं? N2. Yes.
So N2 को basically chemically अगर हमें सही बोलना हो तो what we will call it, we call it dinitrogen, okay? Okay. Or we say it nitrogen molecule. Similarly, CO2 is like this, CO2, and we called it carbon dioxide. क्या बोलते हैं? Carbon dioxide. Carbon dioxide. And how many atoms are? इसमें already die है. हाँ. So यहाँ पर die word already use है, तो इसीलिए. तो इसको basically this is a one molecule of CO2, which contain 3 atoms. That is one carbon and 2 oxygen. Clear? So अब atom और molecule का difference पता चला क्या होता है? Yes sir. It's so clear. atom is the smaller quantity. अच्छा, atom smaller क्यों है? इसको एक तरीके से और हम समझ सकते हैं. There is another terminology. Example. The atom word is derived from a Greek word. It is derived from a Greek word. So means? Greek word means Greek जो है वो इजिप्ट के लिए यूज किया जाता है. ग्रीस का जो टर्मिनोलॉजी थी, जो वोकैबुलरी थी, उसको हम लोग ग्रीक वर्ड्स बोलते हैं. ओके सर. So have you heard about Greece, Athens? No sir, Egypt? Yes sir, I heard about it. Yeah, so basically Egypt is a क्या कहते हैं जिस आइलैंड में है, that is called Greece. Okay. So Greece तो वहाँ की जो टर्मिनोलॉजी है, because साइंस जो है वो पहले वहाँ से ओरिजिनेट हुई थी. तो वहाँ की टर्मिनोलॉजी को IUPAC में हम लोग यूज करते हैं. सो ग्रीक वर्ड में जो ग्रीक टर्मिनोलॉजी है, उसमें एटम वर्ड जो है वो कहाँ से डेराइव हुआ है? एटोमियोस से. किससे हुआ है? एटोमियो. सो एटोमियो मीन्स होता है नॉन कटेबल और अनडिविजिबल. समझ में है? यस सर. तो नॉन कटेबल एंड और अनडिविजिबल. So it means क्या हुआ कि कौन सी चीज ऐसी है जो कट नहीं सकती, जो कि smallest one, which is a smallest. So that's why from this analogy you can also correlate that atom is the smallest unit of matter. Okay. So that's why atom is called smallest unit of matter, because it cannot be further divided or further cuttable, means it is the smallest unit. So this concept was given by a very eminent scientist. His name was Dalton. So this was Dalton atomic theory. Okay. So Dalton was a scientist and he said कि जो atom है, this is the smallest unit of matter and it cannot be further divided. Okay. And जो atoms है, they combine together and form molecule. तो अगर आपको atom को define करना है, तो how will you define atom? This is the smallest unit of matter. Smallest unit of matter. Matter means anything around us, or like table, chair. Yeah, anything around us, which is either in a liquid form or in a gas form or in a solid form. Are matter. Okay. So table chair तो सिर्फ solid form हो गया, solid matter हो. आपके चारों तरफ ऑक्सीजन ह्यूमिडिटी है. जैसे आज के टाइम में बारिश हो रही है, ठीक है, तो जो ह्यूमिडिटी है दैट इज लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर. एंड जो गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन आप ले रहे हो, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये सारा क्या है? दिस इज गैसियस मैटर. CO2 एंड ऑल. यस. या ऑल गैसेस आर गैसियस मैटर. ऑल लिक्विड इज लिक्विड मैटर and all solid is solid matter. So matter can be divided further into solid, liquid and gas, which is till right now in agar more complex we will say, so it can be divided into 5 types. Can you tell me what 5 types of matter can be? So solid, there are 5. gas, liquid, solid, liquid, gas, and there is a 4th state of matter that is called plasma. What we call plasma. And 5th one is boson. Yeah. So 5th sir, one what's that? basically these are the particles
तो ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाए कि So वेदर like gold, हाँ, gold, नो नॉट gold, गोल्ड, silver. गोल्ड इज सॉलिड, गोल्ड तो Yeah. सॉलिड होता है, अगर गोल्ड So सॉलिड so नहीं होता तो ऑर्नामेंट कैसे बनते, ज्वेलरीज कैसे बनती? hmm, yeah. सो So तो बोसॉन, हाँ हम्म बताइए, पूछिए। so तो वही पूछना था कि बोसॉन क्या होता है? बोसॉन बेसिकली कि इनको ना ही सॉलिड में डिफाइन कर पाए, ना लिक्विड ना गैस, ये इन बिटवीन फॉर्म्स थे, यानी दे समटाइम बिहेव लाइक लिक्विड, दे समटाइम बिहेव लाइक For गैसेस। example, एग्जाम्पल नहीं है इसका, इसीलिए तो ये बहुत मैटर जो है इनको बोसॉन पार्टिकल्स ही बोलते हैं। सो okay. बोसॉन पार्टिकल इज अनदर फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, तो ये अभी रिसेंट की जो है इन्वेंशन है, ये दिस इज द इन्वेंशन ऑफ 2017। Okay. ओके, So we cannot see them, या वी कैन नॉट सी देम फ्रॉम आवर नेकेड आईज, but from एंड microscope. या माइक्रोस्कोप वी कैन सी, दैट्स व्हाई दे आर डिस्कवर्ड ना, अगर हम देख ही Okay. नहीं सकते तो फिर हम कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाते। Hmm. सो आपके लेवल पे ठीक है, अभी ये सॉलिड लिक्विड गैस इज मोर देन एनफ, बट ये आप थोड़ा सा अपने एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह रख सकते हो कि देयर आर टू अदर स्टेजेस ऑफ मैटर व्हिच इज Which is प्लाज्मा एंड plasma and boson. बोसॉन। ओके, Hmm. तो ये तो हो गया हमारा एटम। और अब इसमें एटम पे किस किस ने क्या क्या काम किया है, ये आपकी एनसीईआरटी में इस चीज को, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को जो है वो डिफाइन किया गया है। तो आपके Okay. हिस्ट्री में जो चैप्टर के स्टार्टिंग में पोर्शन है, वहां पर उन्होंने दो साइंटिस्ट के नाम जो है वो मेंशन किए, एक है Sir डेमोक्राइटस Joseph L. and लेवॉइजर, Lavoisier. Okay. लेवॉइजर। So Lavoisier was a Yes. scientist who performed who is a very eminent chemist. केमिस्ट मतलब क्या होता है? Sir, chemist which provide us medicine. इजीली मैंने पूछा। So chemist not provide only medicine. Okay. Sir, it's हाँ, chemistry. Sir, I don't know. okay. So any person who has a deep knowledge of chemistry is called chemist. Okay. Okay. Or who are doing research or propounding data regarding chemistry is chemist. So chemist word is related with chemistry and chemicals. So anyone who is dealing with chemicals or chemistry is called chemist. तो एक्चुअली मुझे याद आ गया तो एग्जांपल, मैंने लास्ट ईयर एक 10th के बच्चे को पढ़ाया था, तो ही आस्क्ड कि सर बुक में हर जगह लिखा हुआ है कि ही वाज अ वेरी फेमस केमिस्ट एंड ये वो, तो सर केमिस्ट मतलब ही हैज अ मेडिकल स्टोर? तो मैंने कहा नो, ही इज नॉट हैविंग अ मेडिकल स्टोर, ही वाज डूइंग अ वेरी फेमस रिसर्च, और केमिस्ट्री से केमिस्ट आया है, नॉट मेडिकल स्टोर से। सो ड्रग्स आर, मेडिसिन्स आर क्या? मेडिसिन्स आर बेसिकली केमिकल्स, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट केमिस्ट शॉप। ओके, सो yes. कभी भी केमिस्ट से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में बहुत जगह केमिस्ट जो है लिखा हुआ है। Okay. ओके, Chemist means which has knowledge of chemistry. केमिस्ट्री और केमिस्ट्री एंड Okay. केमिकल सब्सटेंसेस। ओके, Okay. हाँ, अच्छा, थोड़ी सी आपकी जो बुक है उसमें एटम की हिस्ट्री लिखी हुई है कि एटम को कैसे क्या है जो है Okay. वो डिस्क्राइब किया गया, कैसे हमारे Sir, yeah, on the first page only it's yeah written. on first page Ancient, I think you Indian should and know, Greek philosophy. because our Indian philosophy, how Indian philosophy is associated with the science, so being an Indian you should know about it. Okay, Okay, sir. तो आपकी एनसीईआरटी सबसे पहले ही करती है कि जो इंडियन और ग्रीक फिलोसफर थे, यही जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा, क्योंकि ग्रीस में साइंस जो बहुत ज्यादा ओरिजिनेट हुई, और दूसरा इंडिया, इंडिया वाज आल्सो वेरी रिच अबाउट साइंस। आपने पढ़ा होगा जीरो जो है वो इंडिया ने दिया था, Yes, आर्यभट्टा sir. इज रिलेटेड विद Yeah, डिस्कवरी Arya. ऑफ जीरो। ओके, सो आर्यभट्टा प्रोपाउंडेड जीरो, और आपको भी पता है बिना जीरो के मैथ्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है, Yes, sir. एंड इट इज अ वेल नोन फैक्ट। सो हम लोग साइंस में हमेशा से बहुत रिच रहे हैं, और उसी को लेते हुए इन्होंने यहाँ पे एनसीईआरटी में एक बहुत ही एमिनेंट जो है वो इंडियन फिलोसफर का नाम मेंशन है, दैट इज कॉल्ड महर्षि कनाद। व्हाट इज नेम? महर्षि कनाद। Maharsh and
महर्षि कनाड। सो हमारी कनाड। क्लासेस का नाम भी क्या है? महर्षि। तो महर्षि मतलब क्या होता है? महर्षि। ये दो ओके। वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है महान महा प्लस ऋषि। ओके, सो ऋषि मीन्स आपको पता है क्या होता है? नॉलेजेबल सेंट। नॉलेजेबल यस। सेंट इज कॉल्ड ऋषि। एंड महा मीन्स ओके। बड़ा, सबसे जो सीनियर मोस्ट। ग्रेट। ग्रेट, दैट इज कॉल्ड ग्रेट। ग्रेट। सो ग्रेट, जो नॉलेजेबल सेंट को हम लोग बोलते हैं महर्षि। सो महर्षि कर्नाड, इनका बेसिकली नाम इस तरीके से था, महर्षि कर्नाड। ओके, सो महर्षि कर्नाड ये बहुत ही वो थे जिन्होंने क्या बताया कि मैटर को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? पदार्थ। आप अगर आपके पास एनसीईआरटी, यू कैन ओपन इट, सो यू विल गेट ऑल यस। दिस। ओके, पदार्थ। हाँ, पदार्थ। पदार्थ मीन्स मैटर। सो वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर मैटर। पार्टिकल्स। सो उन्होंने बोला कि हम लोग अगर मैटर को डिवाइड करते चले जाएं तो हर लेवल पे हमें बहुत ही स्मॉलर लेवल का पार्टिकल जो है वो मिलता जाएगा। जैसा आप अपनी टेबल को ही तोड़ना शुरू करो तो सबसे पहले क्या होगा? टेबल टूटेगी तो वुडन छोटे छोटे पीसेस मिलेंगे, फिर जब आप उसको और तोड़ते रहोगे तो फिर क्या होगा? फिर वो आपको लकड़ी का बुरादा मिलेगा, वो डेट इज अ पाउडर फॉर्म ऑफ यस। दैट। फिर उसको और फाइन करते जाओ तो फिर आपको वो बहुत ही क्या कहते हैं, फाइन पाउडर मिल जाएगा, पाउडर जिसको फॉर्म। हाँ, जिसको सुपर फाइन पार्टिकल्स मिल जाएंगे, जिनको भी फर्दर आप अगर डिवाइड करोगे तो फिर उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप देखना होगा। ठीक है, अच्छा। तो उन्होंने बताया, तो महर्षि कर्नाड ने एटम वर्ड पहले ही दे दिया था, बट वहां पर उन्होंने एटम वर्ड नहीं यूज किया था। महर्षि कर्नाड ने क्या बोला कि अगर हम पार्टिकल को, मैटर को फर्दर डिवाइड करते चले जाएं तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आती है उसको हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमान। परमाणु। परमाण। ये तो परमाणु। पता ओके। होगा, ये तो अभी मूवी आई थी परमाणु। तो मैंने देखी नहीं थी। अरे सर इट्स नेम ऑफ अ बॉम्ब आई गेस। नो, एक्चुअली एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं। ओके। ओके, सो एटम इन हिंदी कॉल्ड परमाणु एंड मॉलिक्यूल इन हिंदी कॉल्ड अणु। अर्थ। सो व्हाट? अणु। अण। अणु अणु। एंड परमाणु। सो परमाणु इज एटम एंड अणु इज मॉलिक्यूल। सो महर्षि ओके। कर्नाड ने 500 बीसी में इसको दे दिया था, यानी वेरी वेरी लॉन्ग एगो, 500 बीसी, 500 बिफोर क्राइस्ट। इन्होंने परमाणु वर्ड जो है वो एक्सप्लेन कर दिया था। Sir, yeah, it's written in the book. Considered long back in India, around 500 BC, and Indian philosopher Maharishi Kanad. कर्नाड। Yeah. अच्छा, और उसी टाइम ग्रीक में भी कुछ फिलोसफर चल रहे थे, उनके भी नाम आपके एनसीईआरटी में दिए। एक थे डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस। ओके, ल्यूसिपस एंड Lucifer's. डेमोक्राइटस। ठीक है, तो ल्यूसिपस में Yeah. ल्यूसिफर See, yeah, वाली sir, मीनिंग it's आती है। written. ओके, तो डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस, सो ये दो साइंटिस्ट थे जो कि पैरेलली बता रहे थे। तो डेमोक्राइटस ने क्या बताया? डेमोक्राइटस ने बताया कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हैं। ठीक है, एंड ऑल दीज वाज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन। ये सारे के सारे उन्होंने फिलोसफिकल कंसिडरेशन किया, और ये सारा का सारा जो बातें उन्होंने बताई वो कहां पर बताई? 18th सेंचुरी में आकर के, कि वो 18th सेंचुरी तक ये बातें जो है यही फिलोसफी चलती रही। यानी कब इन्होंने, महर्षि कर्नाड ने कब बता दिया था? 500 बीसी, और उसके बाद 1800 सेंचुरी तक, यानी कितने ईयर्स तक? 2300 ईयर्स तक। 2300 ईयर्स तक यही डिस्कशन चलता रहा कि जो एटम है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ओके, फिर आपके एक और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनका नाम आता है, उनका नाम अभी आपने बताया था, एंटोनी एल लेवॉइजर। ओके, सो लेवॉइजर इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट। व्हाई ही इज फेमस? बिकॉज ही प्रोपाउंडेड अ लॉ। कौन सा लॉ दिया था इन्होंने? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। Yes. सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? कि केमिकल्स जो है वो कंबाइन करके, कि एटम जो है कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी एटम हैज अ टेंडेंसी टू मेक कॉम्बिनेशंस, so that is called law of combination. So law of chemical combination was given by Antony Lavoisier. Okay. Okay, Okay. so दो लॉज बेसिकली इन्होंने दिए थे। फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन And the law of conservation of mass. and the law of conservation of mass.
Mass. Okay. So Yes. second one is the law of, अच्छा इनका जो नाम है ये बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है इन लॉस के बारे में. साइंस में टर्मिनोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. जो टर्म होते हैं वो बेसिकली बहुत सारे, मतलब आप समझिए 60% कॉन्सेप्ट को वो टर्म ही डिफाइन करता है. ओके. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, क्या सिग्निफिकेंस आ रहा है यहां से? हेलो, मैं कह रहा हूं कि क्या लॉ Yes, sir. ऑफ, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आपको क्या सिग्निफिकेंस मिल रहा है उस टर्म से? So which term? अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है आपने? पढ़ा होगा. What? व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? Do you Sir, know? I don't remember. Energy cannot be created nor be destroyed. Have you heard about it? Okay. Yes. Similarly, law of conservation of mass क्या कहता है? Mass cannot be created Nor be destroyed. nor be destroyed. So law of conservation of energy क्या कहता है कि energy cannot be created nor be destroyed, and what And conservation law of of conservation said that mass is can not be created and nor be destroyed. मीन्स अगर हमने एक नाइट्रोजन का एटम लिया और अगर हमने एक दो ऑक्सीजन के एटम लिए, सो इट विल फॉर्म NO2. या हमने एक कार्बन का एटम लिया, दो ऑक्सीजन के एटम लिए, तो इट विल फॉर्म CO2. So this is called law of conservation of mass. क्लियर है? इसमें आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दी हुई है. आप अगर उस एक्टिविटी को देखो one of the following. तो मैं आपको एनसीईआरटी शेयर कर देता हूँ और मैं उस एक्टिविटी का समझो. जब आप एक्टिविटी समझोगे देन यू कैन think about it, analyze. So what in activity thread is doing? conical flash. ये आपको एनसीईआरटी दिख रही है? Yes, sir. ओके. अच्छा, आप लोग स्कूल में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है या कोई और भी रिफ्रेशर बुक? No, sir. NCERT पढ़ाते हैं हमें तो स्कूल. वेरी गुड, वेरी गुड. एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए और इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी चाहिए. एनसीईआरटी अपने सर आप RS अग्रवाल की बुक्स आती हैं साइंस में, अभी तो मैथ्स में ही आती हैं. मैथ्स में आती है RS अग्रवाल की बुक. मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी के अलावा देख सकते हैं रिफ्रेशर बुक, बट साइंस में आपको कोई नीड नहीं है. ओके. तो साइंस में आपकी जो बुक है दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ओके. ओके. ये आपको एनसीईआरटी दिख रही है अभी? यस. ओके. तो यहाँ पर देखिए जो है एक मिनट इसको शॉर्ट आउट कर, जस्ट 1 मिनट. ओके. Okay, so यहाँ पे here is a two molecule X and Y. You are getting it? दिख रहा है आपको? Yes, sir. X and Y, and he take कि इन्होंने दो सेट्स लिए. सबसे पहले सेट में इन्होंने क्या किया, कॉपर सल्फेट. X क्या था इनका? कॉपर सल्फेट था, और वो उन्होंने कितना लिया? 1.25 ग्राम लिया. एंड सेकेंड सोडियम कार्बोनेट था, ये 1.43 ग्राम लिया. तो हम इसको लिख लेते हैं, तो लिख के आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा. कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट. आप मुझे अमाउंट बता देना बस. He has taken copper sulfate as a X and Y as sodium carbonate. Okay. अभी ये फॉर्मूले कैसे बने हैं ये शायद आपको नहीं आइडिया होगा, बट वी विल डिस्कस इट लेटर. ओके. तो अभी परेशान होने की बात नहीं है. दिस इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट.
and this is sodium carbonate. Okay, कितना कितना अमाउंट लिया दोनों का? प्लीज टेल मी, अगर आपकी एनसीईआरटी ओपन है तो। आई थिंक एक 1.25 ग्राम था एंड वन इज 1.43 ग्राम। Are you getting my voice, Jabji? Jabji, I am audible. Hello. Yes, sir, you are audible. Okay. So there are two amount they are taken, 1.25 gram and 1.43 gram. अब इन्होंने क्या किया कि एक्टिविटी को अगर आप पढ़ें तो इन्होंने क्या what they are saying, हम लोग आ जाते हैं अपने इसमें एनसीईआरटी को देख लेते हैं। He is saying कि prepare separately a 5% solution of any one pair of substance. अच्छा, do you know how to prepare a 5% solution of any one? अगर हमें मान लो आपके पास शुगर है, for an example, कि you have to prepare a 5% solution of sugar in water. So how will you prepare it? Can you tell me? We'll take some water and mix sugar into it. वो तो नॉर्मल सोल्यूशन हो गया, लेकिन हमें अगर फिक्स अमाउंट का बनाना है, if we want to form 5% solution of sugar in water. Sir, So 5% means देखो यहाँ पर हमें, अब देखो क्योंकि अगर हम शुगर को सिंपली शुगर लेंगे और उसको पानी में हम ऐड कर देंगे, ओके, तो what we will get sugar solution, but we cannot say कि how much its concentration is, या ये कितने अमाउंट में। So we just say कि ये शुगर सॉल्यूशन है जहाँ चीनी जो है वो पानी में घुली हुई है, बट कितनी चीनी कितने पानी में घुली हुई है इसका कोई नहीं। अच्छा, जब यहाँ पर इन्होंने 5% मेंशन कर दिया, मींस इन्होंने अमाउंट जो है वो फिक्स कर दिया। So what will be the amount here? so we'll take a measuring glass. What? Hello. Hello. हाँ, टेल मी, आपकी आवाज कट गई थी पहले। Okay. So देखो यहाँ पर इन्होंने, अच्छा मैं बता रहा हूँ कि 5% सोल्यूशन यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा, तो जब भी कहीं पर भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिले 5% सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग एल्स, ओके, तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि हियर इट मींस 5 ग्राम ऑफ शुगर। मैंने क्या मेंशन किया, 5% सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, इनमें 5 ग्राम ऑफ शुगर dissolved In water. in how much In water? water. Percent will divide the content of water. So in how much water? तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100%, correspond for 100, so in 100 ml of water, okay. Okay. So the significance of 5% solution term is that is 5 gram of sugar dissolved in 100 ml of water. Clear? तो ये शुगर और वाटर यहाँ मेंशन है। अच्छा, यहाँ पर देखो आपकी एक्टिविटी पे क्या मेंशन किया है उसने कि 5% solution of anyone in 10 One ml pair of substances listed under X and Y, each in 10 ml in water. each in 10 ml, कह रहा वो उसने क्या लिया, 10 ml वाटर में 5% सोल्यूशन बनाना है दोनों का। तो अब देखो कैसे बनाएंगे कि इसका 5% सोल्यूशन बनाना है वाटर में, और वाटर का अमाउंट कितना फिक्स कर दिया उसने, 10 ml, ओके। Okay. तो अगर हमें 5% सोल्यूशन बनाना है तो हमें कितना x चाहिए होगा, 5 ग्राम x इन 100 ml ऑफ वाटर, क्लियर है। Yes. बट यहाँ पर वाटर का अमाउंट कितना कर दिया उसने, 10 10 ml, ml. तो हमारा x का अमाउंट ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा बाय यूनिटरी मेथड। अगर हम इसको यूनिटरी मेथड से देखेंगे, फॉर 5% सोल्यूशन द अमाउंट ऑफ x used, ठीक है, तो 5% हो जाएंगे, हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे 100 ml। So your voice is cracking. Okay, we can say it कि for 100 ml water we can put unitary Excuse me, method sir. here. Hello. So your voice is cracking. Still cracking, or is it No, clear sir. now? No, it's clear. Okay, so for 100 ml 5% solution अगर हमें प्रिपेयर करना है तो for 100 ml water how much x we required,
या for 100 ml of water x required is 5 gram. Okay, so for 10 ml water x required is what it will be, 5 by 100 into 10, that is 0.5 gram. तो अगर हमें 10 ml वाटर का 5% सोल्यूशन बनाना है तो हम उसमें कितना x डिसॉल्व करेंगे, 0.5 ग्राम. क्लियर है? ऐसे अगर हमें y का sir, if there is some like the percentage is 10, so what do we take? so if 10 is there, 10% means देखो 10% of solution means solution of x in water means 10 gram x in 100 ml of water. So Yeah. 10 gram x in 100 ml of water. So 100 ml water में कितना x चाहिए, 10 ग्राम. सो अगर हमने 10 ml of water ले रहे हैं तो x कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 1 ग्राम. क्लियर? इट्स सिंपल. Yes. ओके, अगर मान लो वो आपको कह देता कि 20 ml वाटर के लिए सपोज निकालो कि हमने जो वाटर लिया है वो 20 ml, तो आपका x का अमाउंट क्या हो जाता अगर आपको 5% सॉल्यूशन बनाना है? कैन यू टेल मी? 20 ml. देखो 5% solution of x in 20 ml of water. So how much amount we have to take of x? Sir, 100 ml. So देखो Sir, हाँ, देखो हम इसको 100. Okay. 100 ml for 100 ml 5% solution अगर हमें बनाना है तो 100 ml water में how much x we required? That is 5 gram. Yes. So for 20 ml of water how much x we required is 5 by 100 into 20. Yeah. That is So 1 gram. okay. Clear? 1 gram. Yeah. ऐसे अगर आपको 40 ml दिया हो तो कैसे क्या हो जाएगा अमाउंट बताइए मुझे. So 5 upon 100 into 40. So 5 upon 100. again 1. So it is 20 by 10. That is Yes. 2 gram. Not 20. again 1. 2 gram. Okay. ओके, Okay. तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कितना परसेंटेज हमें डिसॉल्व करना है. क्लियर है? Yes. ओके, अब देखो ये एक्टिविटी एक बार आप जल्दी से पढ़ लो. आओ मुझे बताओ क्या कोई कुछ ऐसा है जो इसमें आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि कभी कभी स्कूल एग्जामिनेशन में आपकी एक्टिविटी से भी क्वेश्चन बना देते हैं. Sir, it's clear. क्लियर? Yes. समझ में आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है ये? Yes. ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लॉ, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. Constant proportions. लॉ ऑफ, अच्छा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आप अगर एक एग्जांपल से समझो ना सो यू विल इजीली गेट. कांस्टेंट प्रोपोर्शन मींस कि एक प्रोपोर्शन फिक्स है एटम के कंबाइन होने का. जैसे एक कार्बन का मॉलिक्यूल है और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक CO2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं. यानी एक ये इस मॉलिक्यूल के लिए एक प्रोपोर्शन फिक्स है कि 1 कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, 1:2. ओके, अब डजंट मैटर कि आपके पास 100 कार्बन है और 300 ऑक्सीजन है, तो भी ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म CO2. 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड जो 100 O2 मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, बचे हुए रह जाएंगे, क्योंकि ये प्रपोर्शन फिक्स्ड है. ये प्रपोर्शन है जो आपका है, ये प्रपोर्शन तो सॉरी ये गलत हो गया क्योंकि हमारे कार्बन जो है वो 100 है, तो ये 100 O2 Yes. से ही जुड़ेंगे. ठीक है, Sir, the carbon is 150 or 100? कार्बन इज 150. व्हाई? It's 100. Sir, देखो मुझे नहीं समझ में आया ये, मैं समझा रहा हूँ. देखो no 100 sir. कार्बन, हाँ, अब समझ
अब क्लियर पर है? जो आपने 150 लगा वो 150, यस इट्स क्लियर। नो इट्स नॉट क्लियर कि देयर इज 100 कार्बन और इसको हम 300 O2 की जगह अगर हम 300 O लिखते तो शायद आपको कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, तो वो 2 टाइम्स O को जो है वो मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया 100 कार्बन और प्लस 2 या 300 ऑक्सीजन। ओके, 300 ऑक्सीजन एटम। सो अभी जो है ये सेम प्रोपोर्शन ये अटेन करेगा किससे, 1:2 के प्रोपोर्शन में। यानी 100 कार्बन है तो ये 200 ऑक्सीजन को लेकर के क्या बना देगा, 100 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, एंड जो आपके 100 ऑक्सीजन एटम है वो लेफ्ट हो जाएंगे, बचे रह जाएंगे। ठीक है, अब क्लियर है भाई? 200 ऑक्सीजन यहाँ यूज हो गया ना, 100 इंटू 2, तो 200 ऑक्सीजन यहाँ यूज हो गए और हमने टोटल यस 300 लिए थे तो 100 यहाँ पर बच गए। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि किसी भी अमाउंट में कार्बन और ऑक्सीजन बाइंड करें वो ऑलवेज उनका रेशियो क्या रहेगा, हमेशा 1:2 का। सपोज 5 कार्बन और 10 ऑक्सीजन मिल रहे हैं तब भी ये क्या बनाएंगे, 5 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ही बनाएंगे। ऐसा नहीं कि 5 कार्बन जो है वो, हाँ, कभी ऐसा नहीं होगा कि कार्बन जो है CO4 बना दे या कार्बन CO3 बना दे। ओके, वो उसका excuse जो me sir, your voice, वॉइस so इज your voice is cracking. अगेन नाउ इट इज फाइन। Hello sir. इज इट फाइन नाउ? Sir, you are not audible. Hello. जस्ट 1 मिनट, मैं दोबारा से रिकनेक्ट कर रहा हूँ। Okay. मासी, नाउ इट्स ऑडिबल? yes sir, you are audible. ओके, तो कहाँ पर थे हम? आप टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ Sir, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। yes sir. तो समझ में आया कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? मींस डजंट अमाउंट ऑफ मैटर, अगर एक कार्बन 2 ऑक्सीजन Yes के sir. साथ मिलकर के CO2 बना रहा है सो इट विल ऑलवेज फॉर्म CO2। और अगर वाटर है, जैसे वाटर में 2 हाइड्रोजन मिलकर और 1 ऑक्सीजन मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, तो कितना भी अमाउंट, डजंट मैटर 10 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 2 किलो, 10 किलो, कितना भी हाइड्रोजन हो, डजंट मैटर, it will always form H2O, where the ratio of hydrogen and oxygen always will be 2:1. Okay, so if H2O, Okay. तो ऑलवेज वहां पर वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो ऑलवेज क्या होगा, 2:1। CO2 जब भी फॉर्म होगा ऑलवेज कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 1:2। ओके, 2:1 is ammonia is formed, so always its ratio will be 1:3। डजंट मैटर कितने भी अमाउंट का वो बन रहा है या कितनी भी बड़ी रिएक्शन जो है वो लग रही है, इट डजंट मैटर। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, okay. चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो इन्होंने इसको, Sir, only मैं एनसीईआरटी की बार आपको शेयर कर दूं। yes sir. शेयर, कर दो. आई थिंक जबकि यू आर द basically admin now, host.
No, sir. The screen is front of me. No, actually you are the host now. So can you make me the host again? Okay. That's why I can share it more quickly. Sir, कैसे बनाते हैं? आप अपने जहां पर I आपका don't. नेम दिख रहा है ना, वहां पर आप राइट क्लिक करो. जब जी होस्ट लिख के आ रहा है ना जहां पर, वहां पर आप राइट क्लिक करो. सर वो नहीं लिखा हुआ. हाँ, आप सर नहीं पार्टिसिपेंट्स पे लिखा. जाओ. ओके. आप पार्टिसिपेंट्स पे जाओ. ओके. ओके. और पार्टिसिपेंट्स पे जाकर के आप अपने नाम पे क्लिक करो. सॉरी, क्लिक मत करो, राइट क्लिक करने से ओके. आएगा. आप सर जब it's not. क्लिक करोगे ना, तो आपको वहां पर राइट क्लिक करोगे तो आपको वहां पे होस्ट का ऑप्शन आएगा. Today I'm attending it on my phone. So how? ओके ओके, यू आर अटेंडिंग फ्रॉम योर फोन. ओके, नो इशू. चलिए कोई नहीं, मैं इसमें आपको ऐसे ही बता देता हूँ. Okay. तो यहाँ पर देखिए एक डेफिनेशन दी हुई है आपकी, ये आपको दिख रही है, इटैलिक्स में दी हुई है. इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट present in definite proportion by mass. So this is a law of constant proportion कि अगर कोई chemical substance है, so elements are always present in definite proportion. Clear है? तो ये आप लोग को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट लिखने को आ सकता है कि स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ओके. चलिए अब इस पे कुछ डाल्टन का यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो जाता है. सो डाल्टन ने जो अपनी थ्योरी दी थी बेसिकली, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन फेमस किस लिए है? फॉर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय डाल्टन. ओके, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय डाल्टन. तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, हम तो लिख नहीं सकते, तो हम वहां चलते हैं जहां हम कुछ लिख सकते हैं. सो द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी या एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय डाल्टन. का नाम आपने पहले और कहीं सुना था? No, sir. I didn't hear the name. Okay, the first atomic theory was given by, इनका पूरा नाम क्या था? जॉन डाल्टन. सो आप डाल्टन ही याद रखो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ओके. Okay. द फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय डाल्टन. सो डाल्टन जो है ये बहुत ही एमिनेंट साइंटिस्ट थे, और जब भी हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम सीधे सीधे डाल्टन की थ्योरी पे आते हैं. हम Okay, स्टार्ट भी यहीं से करते हैं क्योंकि ये सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी जाती थी इनके टाइम तक, जब तक ये डिस्कार्ड नहीं हुई. तो इन्होंने किसको बेसिकली जो है, ये इन्होंने तीन थ्योरीज को कंबाइन किया. जो इससे पहले हमने थ्योरीज पढ़ी कौन कौन सी? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ law मास and the एंड proportion one. प्रोपोर्शन. तो डाल्टन Law की of. थ्योरी थी बेसिकली, ये डाल्टन की थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को क्या करती थी? एक्सप्लेन करती थी. सो कैसे उन्होंने इसको किया? क्या क्या थ्योरीज के पार्ट थे इन्होंने और कैसे इन्होंने? तो सबसे पहला चीज जो मैंने आपको बताया कि डाल्टन ने क्या प्रपोज किया था कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम. ओके, ये उनके एटॉमिक थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था. Sir, voice is cracking. ओके, मैं ऐसा करता हूँ, एक अपना वीडियो Sir, कर देता हूँ, शायद इस वजह से थोड़ा okay. सा. आई थिंक So now it's clear. नॉइज क्लियर ना? Yeah. नेटवर्क इशू हो सकता है, वाईफाई में कुछ. ओके, सो हम लोग एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं, जो एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट डाल्टन ने दिए थे. तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन. तो फर्स्ट पोस्टुलेट डाल्टन का क्या था कि द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस टाइनी पार्टिकल्स या स्मॉल पार्टिकल्स
और उन्होंने क्या नाम दिया था उनको? एटम। एटम। और स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ओके, सो एटम को इन्होंने कैसे बोला कि एटम है जो कि क्या होते हैं, वो नॉन डिविजिबल या नॉन कटेबल है, और जो कि अपनी आइडेंटिटी रिएक्शन में क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था कि दे मेंटेन देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये समझ में आया लाइन आपको? यस सर। आइडेंटिटी ड्यूरिंग द, कैसे? लेट्स सी एग्जांपल। सपोज एक मॉलिक्यूल था कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम था और उसके साथ CO3 लगा हुआ था, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट किया गया तो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन हुई। तो क्या हुआ कि Ca मतलब कैल्शियम रह गया और उसके साथ एक ऑक्सीजन लगा रह गया, और जो CO2 गैस थी वो निकल गई यहाँ से। ओके, तो देखो ये क्या था, ये एक मॉलिक्यूल था। क्लियर है? दिस इज अ मॉलिक्यूल। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन मॉलिक्यूल ने तो अपनी आइडेंटिटी खो दी, यानी अब देखो नए मॉलिक्यूल बन गए। ओके, कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। बट आप अगर एक चीज ध्यान दो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या चीज नहीं खत्म हुई, तो एटम, जो एटम जितने थे उतने ही रहे। यहाँ पर 1 कैल्शियम था, यहाँ पर भी 1 कैल्शियम है। यहाँ पर 1 कार्बन था, यहाँ पर भी 1 कार्बन है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन था, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है। सो मॉलिक्यूल ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, बट एटम्स ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई। वो जितने रिएक्शन के पहले थे उतने ही रिएक्शन के बाद है। ओके, सो दैट्स व्हाई सर एटॉमिक। एटम्स एट इज इट, हाँ, सर एटम जो है वो एज इट इज रहेंगे। हेलो, हाँ थोड़ा सा आपका वॉइस कट गई थी, आप एक बार फिर सर से क्वेश्चन आप अपना रिपीट कर दिए, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। यस सर। सर आई वाज सेइंग दैट जो एटम जो है वो एज इट इज रहेंगे। हाँ एज इट इज तो है। देखो एटम तो कहीं नहीं चेंज हुआ ना। क्या मान लो कार्बन की जगह नाइट्रोजन तो हो नहीं गया, कि कार्बन हमने लिया था और मिला हमें नाइट्रोजन, तो मिला तो हमें कार्बन ही ना। तो कार्बन ही था और वो कार्बन ही रह गया प्रोडक्ट में भी। मतलब यहाँ पर देखो देयर इज अ 1 कैल्शियम, सो हियर इज 1 कैल्शियम इन प्रोडक्ट आल्सो। हियर इज 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन इज प्रोडक्ट आल्सो, एंड 1 कार्बन इज रिएक्टेंट एंड 1 कार्बन इज इन प्रोडक्ट आल्सो। सो मींस जितने एटम हमने पहले लिए थे उतने ही एटम बाद में ही बचे। बट लेकिन जो मॉलिक्यूल था, यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या था, ये पूरा बड़ा सा मॉलिक्यूल था जो कि फर्दर अपने फ्रेगमेंट्स में टूट गया, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो मॉलिक्यूल ने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी, कि हमने रिएक्शन की स्टार्टिंग में कैल्शियम कार्बोनेट लिया था CaCO3, एंड इट इज ब्रेक इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। so molecule lost their lost its identity, but atoms not। एटम जितने थे और जो थे वो वही है। पहले भी कैल्शियम था, पहले भी कार्बन था, और 1 कैल्शियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन। इन प्रोडक्ट देयर इज आल्सो 1 कैल्शियम 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट बताइए, तब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। जबकि my voice is clear? हेलो। my voice is coming? यस सर यू आर, यस सर यू आर क्लियर। ओके, तो थर्ड पोस्टुलेट जो एटॉमिक थ्योरी का था वो क्या था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो सेम होते हैं। जैसे मान लो कार्बन क्या है, हमारा एलिमेंट है। सो कार्बन का कोई भी एटम होगा सब आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, सो कार्बन कार्बन के जितने भी एटम होंगे सब एक दूसरे के सिमिलर। ऑक्सीजन के जो एटम होंगे वो सारे, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन के जितने भी एटम होंगे सब एक दूसरे से क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन के जितने भी, नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट, और इसके जितने भी एटम होंगे सब एक दूसरे से सिमिलर होंगे। सो एटम्स, तो हमें क्या रूल जो है वो पोस्टुलेट कर सकते हैं कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, atoms of same element are same in their
mass and properties. ये पॉइंट समझ में आया कि कोई भी एलिमेंट है उसका एटम जो होगा वो सेम होगा और डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे। और इसी के साथ चौथा पोस्टुलेट भी हम ये देख लेते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। कैसे भाई? कार्बन एलिमेंट का जो एटम होगा वो डिफरेंट होगा, ऑक्सीजन एलिमेंट का जो एटम होगा डिफरेंट होगा, नाइट्रोजन एलिमेंट का एटम डिफरेंट होगा। क्लियर? ये चीज समझ में आई जब जी? यस यस। ओके, फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया इसमें कि द एटम combined in a fixed ratio and form molecule। ये हमारा कौन सा रूल हो गया? लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion। what is this? law of constant proportion। ओके, तो हमने कौन कौन से पॉइंट देखे इसमें कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस टाइनी पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। दे मेंटेन देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइम भी अपनी आइडेंटिटी, एटम अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज करते, व्हाइल मॉलिक्यूल कैन लूज। द थर्ड पॉइंट इज एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन, सेम एलिमेंट के एटम्स जो होंगे वो कैसे होंगे? सेम होंगे। किसमें? देयर मास एंड प्रॉपर्टी। और जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे वो कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे in mass and property, in mass and properties। okay, and the last one ki the atom combined in fixed ratio and form the molecule। clear है? ये समझ में आया सारा जब जी? हेलो हेलो, हाँ जब जी, क्लियर हुआ आपको? हाँ बताइए। हेलो 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 हेलो, हाँ जब जी? यस सर। यस यस, जब जी यस मेरी वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है? यस नो सर, नाउ इट्स क्लियर सर। In between it's cracking, but after some time it gets clear। ओके, तो ये आपको जो 5 पोस्टुलेट्स मैंने बताया एटॉमिक थ्योरी की, ये समझ में आए? Yes sir। आई एम रिपीटिंग इट, एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ। The first point is the matter is composed of various Okay। tiny particles called atom। Second is they maintain their identity during the chemical reaction, mean they do not lose their identity during the chemical reaction। And third is the atom of same element are same in their mass and property, or atoms of different element are different in mass and property। Suppose ऑक्सीजन का एटम अलग होगा, कार्बन का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, so different element के एटम जो है वो different है। और जो एटम है वो कंबाइंड होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सर। कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सर यस, कनेक्टिंग। कनेक्टिंग। चलिए, एक्चुअली यहाँ पर बारिश हो रही है थोड़ी, आई थिंक दिस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है नेटवर्क का। ओह तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको यहीं पर आज एंड कर देते हैं क्लास को। ओके जब जी?
So I will continue it Okay. in further class. Okay. तो हम लोग एक शेड्यूल बना लेते हैं, वो शेड्यूल आपको जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे. So according to that you can get your weekly schedule. Okay. कोई डाउट Okay, जब sir. भी हो तो आप मुझे बता सकते हो कि कोई डाउट अगर है आपका, मतलब कुछ ऐसा आपसे सजेशन मुझे देना चाहो. आप थोड़ा सा अगर इस तरीके से पढ़ाते तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे, या आप बहुत स्लो हो गए या बहुत फास्ट हो गए या बहुत इलेबोरेटिव हो गए. देयर इज नो नीड ऑफ सच काइंड ऑफ इलेबोरेशन और एक्सप्लेनेशन. No doubt. नो डाउट. पक्का समझ में आया? हेलो.